Since we are going to have a test on the book of Titus on Sunday evening around 5 o'clock, so it will be a multiple choice question on your net. It will come there, so you'll have to answer it. तो हमारा एक एग्जाम होने वाला है जो रविवार को होने वाला है शाम को 5 बजे। तो वहाँ पर इंटरनेट पर ऑनलाइन क्वेश्चंस होंगे, उसका जवाब आपको टिक करना पड़ेगा। We will post it on the group so that everybody will get a copy of that, and you can also pass it on to anybody else whom you want to know who wants to appear in the test. Because everybody is open to answer this test. तो ये जो लिंक है हम हमारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, और जिन किसी को भी आप चाहते हो कि वो लोग भी इसमें भाग ले ले, तो उनके लिए भी ये फॉरवर्ड कर दो आप, ताकि वो भी ये जो एग्जाम है इस टेस्ट में भाग ले सके। So now this test, the question paper is in English and also in Tamil. जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा और तमिल में होगा। It is prepared by the Vellore Church. तो ये बनाया गया है वेल्लोर चर्च के द्वारा। So we have to answer the questions without looking into the Bible. तो बाइबल में बिना देखे ही सारे सवालों का जवाब हमें देना है। I think there are more than 100 questions, so that every verse will have a question. तो मुझे लगता है कि 100 सवाल से भी अधिक सवाल होंगे, तो हर एक जो वचन है उसके ऊपर सवालें होंगी। It is very easy, you just have to pick the right answer. तो बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ जो जवाब है उसे उस पर सिर्फ टिक करना है। Those who are not fluent in English can open the Bible, the Hindi Bible, and they can read it and try to pick the right answer. तो जिनको अंग्रेजी अच्छे से पता नहीं है वो अपने हिंदी बाइबलों को खोलकर देखकर उस आंसर को टिक कर सकते हैं। Or they can take anybody else's help to understand the question. या तो फिर किसी की मदद ले सकते हैं ताकि वो जो सवाल है वो समझ पाए। So this test is only that we can know the scriptures better. तो ये टेस्ट इसके लिए रखा गया है ताकि हम वचनों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। And the letter to Titus is a very small letter. तो जो तीतुस को जो पत्र लिखा गया है बहुत ही छोटा एक पत्र है। 3 small chapters. सिर्फ 3 ही अध्याय है इसमें। And there are about 15 verses in each chapter only. और हर एक अध्याय में 15 वचन है लगभग। But it is a very practical and very useful for our day-to-day living. तो ये हमारे लिए हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए, वास्तविक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक वचन है सब। The Apostle Paul wrote this letter to Titus, who was his co-worker and who came to the Lord through him. तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है तीतुस को ये पत्र लिखते हैं जो उनके सहकर्मी थे और जिनके पास वो काम करते थे। We know that Titus was not a Jew, he was a Gentile, he was a non-Jew. तो हम जानते हैं कि तीतुस जो था वो एक यहूदी नहीं था, वो एक जाति व्यक्ति था। But he was very close to the Apostle Paul, just like Timothy was. तो वो प्रेरित पौलुस से बहुत ही करीबी थे, जैसे कि तिमोथी था। So, and the Apostle Paul could give much responsibility because he was a very faithful man. तो प्रेरित पौलुस ने उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां दी थी क्योंकि बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति थे वो। He was very faithful in his hidden life. तो उनके जो रहस्य में जीवन है उसमें वो बहुत ही विश्वास योग्य थे। And we will start from verse 1. तो हम पहले वचन से शुरुआत करेंगे। It is a greeting which the Apostle Paul gives to Titus. तो ये एक आदर है, जो एक नमस्कार है जो प्रेरित पौलुस तीतुस को पहले देते हैं। He is writing that Paul, a bond servant of God. यहाँ पे लिखा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास है। So the Paul called himself God's slave. That means I am not even a servant but a slave of God. I will do whatever God tells me to do. तो यहाँ पे पौलुस अपने आप को एक दास कहते हैं, ना कि सेवक। वो ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे जो भी करने के लिए कहेंगे मैं वो करूंगा। And also after that he said, and an apostle of Jesus Christ. और उसके बाद वो कहते हैं मैं यीशु मसीह का प्रेरित भी हूँ। Apostle means the one who was sent by the Lord Jesus Christ to preach the gospel and to plant churches.
तो प्रेरित होने का अर्थ है जो किसी को यीशु मसीह ने भेजा है ताकि वो परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके और जो कलीसिया है उनका स्थापना करे। See, God chooses men to do the work of the Lord, and there are five types of ministries. तो परमेश्वर लोगों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुनते हैं और वहाँ पे 5 प्रकार की सेवकाई हैं। They are apostles, एक तो प्रेरितों का, then there are prophets, फिर भविष्यवक्ता है, then there are evangelists, फिर सुसमाचार सुनाने वाले, then there are pastors, फिर पासबान होते हैं and there are teachers. और फिर शिक्षक भी होते हैं। They are meant to build up and encourage the brothers and sisters in every church. तो उनको इसलिए भेजा गया है ताकि वो हर कलीसिया में हर एक भाई बहनों को प्रोत्साहन दे सके, उनको प्रभु में बढ़ा सके। Apostles are very few because they plant many churches. प्रेरित लोग जो है बहुत ही कम है क्योंकि वो बहुत सारे कलीसिया को स्थापना करते हैं। Just like we have the apostle brother Zach, also he is like an apostle of God. तो जैसे कि हमारे पास ब्रदर जैक है, वो परमेश्वर की ओर से एक प्रेरित है। So he says he is an apostle of Jesus Christ for the faith of those who are chosen of God and the knowledge of the truth which is according to godliness. फिर यहाँ लिखा है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। So the main reason the apostle Paul purpose was that they may all come to the faith in God. तो प्रेरित पौलुस का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम सभी जो है परमेश्वर के इस विश्वास की ओर आ जाएं। Not to have unbelief, but to have faith. अविश्वास हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, परंतु वहाँ विश्वास होना चाहिए। And we must come to have the knowledge of the truth things, the truth we must know. और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि हमें जो है सत्य की पहचान होनी चाहिए। So the apostles are come to give us the truth. और प्रेरित लोग आए हैं ताकि हमें सत्य की पहचान कराएं। The apostle Paul wrote the letters, and that it turned out to be scripture, and that is the truth for us. तो प्रेरित पौलुस ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी और वो वचनों में उसका परिवर्तन हुआ, वो हमारे लिए सत्य की एक पहचान बन गई। And this truth, it says, leads us to godliness. और फिर ये जो फिर पहले अध्याय के पहले वचन के आखिरी में लिखा हुआ ये जो सच है हमें भक्ति की ओर हमें ले जाता है। God wants us to become like Jesus. परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। The purpose of all the instruction and all the encouragement that we get. यही है उद्देश्य सारे जो भी प्रोत्साहन है, जो भी वचन है जो हमें मिलता है उसका। And then verse 2 says, in the hope of eternal life, which God who cannot lie promised long ages ago. और दूसरे वचन, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। So God has promised us the life of God, a life of peace, joy and happiness, and love, joy, peace and happiness in God for all those who desire Him. तो परमेश्वर हमारे लिए एक वायदा किया है कि जो कोई भी उनकी ओर इच्छा रखते हैं, उनके ऊपर अभिलाषा रखते हैं, उनको आनंद, प्रेम, शांति वो भरपूरी के हमारे जीवन में दे देंगे। That is the life of God. वो परमेश्वर का जीवन है। And He has promised all this to all His children who fear Him. तो ये जो वादा है उन्होंने सभी जो उनके बच्चे हैं उनको किए हैं जो उन पर भय रखते हैं। So when Jesus came in verse 3, but at the proper time manifested even His word in the proclamation with which I was entrusted according to the commandment of our God and Savior. उसके तीसरे वचन पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। So at the proper time Jesus came, and after that the Holy Spirit came on the day of Pentecost, and they were filled with the Holy Spirit and they were able to preach this good news. तो हम देखते हैं उचित समय पर यीशु मसीह आते हैं, फिर उचित समय पर जो है पवित्र आत्मा उतरता है। पेंतेकोस्त के दिन पर वो पवित्र आत्मा से भरकर वो सुसमाचार सुनाने लगते हैं। And this, the good news, Jesus said, you must preach to the ends of this world. तो ये जो शुभ संदेश है, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि इस दुनिया की चोर तक जाके तुम्हें इस संदेश को सुनाना है। Jesus told his disciples, go into all the world. Matthew chapter 8 last verse, it says 28, that into all the world and preach the gospel. यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं मत्ती की सुसमाचार 8 अध्याय उसके आखिरी वचन 28 वचन में कि पूरी दुनिया में जाकर इस संदेश को सुनाएं।
So it is our responsibility also to proclaim the gospel now that we have heard the good news that Jesus Christ can free us from sin. तो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम भी इस समाचार का जो है प्रचार करें, उसका घोषणा करें कि यीशु मसीह जो है हमें हमारे पापों से छुड़ा सकते हैं। And he can give us eternal life, which is the life of God. और वो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं जो कि परमेश्वर का जीवन है। And nobody can destroy this eternal life. और ये अनंत जीवन कोई भी नाश नहीं कर सकता। And this is according to the commandment of our Lord of God, our Savior. तो ये हमारे जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है उनकी आज्ञा का अनुसार हुआ है। Because the apostle Paul was not there when Jesus gave this commandment to the apostles, but Jesus met him on the way of Damascus and told him to speak the gospel to all the people, to the non-Jews. तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों को ये सारे आज्ञा दे रहे थे तब पौलुस वहां पे नहीं थे, परंतु जब पौलुस दमिश्क की ओर जा रहे थे तभी उनकी मुलाकात जो है यीशु मसीह से होती है। और फिर यीशु मसीह उनको कहते हैं कि पूरी दुनिया में जाकर ये जो समाचार है उसे फैलाना है सारी जातियों के बीच में। And we also learned that we also have to spread the good news, the gospel, to all the people around us. तो हमें भी पता है कि ये जो शुभ संदेश है हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं उन्हें भी हमें इस समाचार को सुनाना है। So all those are willing to listen. और जो कोई भी इस सुसमाचार को सुनना चाहते हैं उनको Sometimes we can give a small little piece of literature that leads them to the Lord. तो हम उनको थोड़ा सा छोटा वचन बता सकते हैं जो उन्हें परमेश्वर की ओर उनकी अगुवाई कर सकता है। We can give them some book. We can give them the New Testament. हम उनको कोई किताब दे सकते हैं या जो नया नियम का किताब है वो दे सकते हैं। We can tell them that this has changed my life. It can change your life also. हम उनको ये कह सकते हैं इसने मेरे जीवन को बदल दिया है तो ये आपके जीवन को भी बदल सकता है। Just freed me from the power of sin and anxiety and evil. And now, if you want to be free, you can also believe in Jesus Christ and know the truth. तो हम ये कह सकते हैं इसने मुझे मेरे जो चिंता है, मेरे जो शैतान जो पाप का सामर्थ्य है और सारे जो बुरी बातें हैं उससे मुझे स्वतंत्र किया है। अगर यीशु मसीह पर आप भी विश्वास करोगे तो आप भी इन सारी चीजों से स्वतंत्र हो सकते हो। So with this greeting, he says, verse 4 to Titus, my true child in the common faith. तो हम देखते हैं इस नमस्कार के साथ वो कहते हैं पौलुस की ओर से 14 वचन, तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। So Titus was a Gentile who came to the Lord through the apostle Paul. तो हम देखते हैं तीतुस जो था एक जाति व्यक्ति था जो पौलुस के द्वारा इस विश्वास की ओर आते हैं। And he was a true child. और वो एक सच्चा पुत्र था। It means he was not a false child. He was not just following the Lord for a show, but he was went through all. He was very faithful in his own life. तो हम देखते हैं वो एक सच्चा पुत्र था, एक झूठा पुत्र नहीं था जो सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए अपन जीवन जीता था, परंतु विश्वास से योग्यता से उसने अपने जीवन जिया था। So we also learned that we also should be true to the word of God and be obedient to the word of God. तो हम भी ये जानते हैं कि हमें भी परमेश्वर के इस वचन के लिए सच्चे होने चाहिए और परमेश्वर के वचनों के लिए विश्वास योग्यता के साथ रहना चाहिए। And the apostle Paul said later, to grace and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ and Jesus Christ our Savior. और उसके बाद पौलुस कहते हैं परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। The grace means the help from God in every way. अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर की ओर से सारी मदद हर एक मार्गों के द्वारा। And peace from God means in all our troubles and problems that we go through, God will give us His peace. शांति का अर्थ है कि जो भी समस्या, जो भी परेशानियों का सामना हम प्रतिदिन के हमारे जीवन में करते हैं, उसमें परमेश्वर हमें शांति देते हैं। He is in charge of our life. वो हमारे हमारा जीवन का जो नियंत्रण है उनके हाथों में है। All the battles are all our troubles battles are the Lord's battle. तो हमारे जितने भी लड़ाई है, युद्ध है, सब परमेश्वर के युद्ध और लड़ाई है। He is there to control he is in control of our lives. तो हमारे जीवन का जो नियंत्रण है उनके हाथों पर है। So we don't have to fear. तो हमें कोई भी डरने की बात नहीं है। So as we sang the song Amazing Grace, all my fears were relieved. जैसे हमने इस गीत को गाया कि बहुत ही बड़ा जो अनुग्रह है, अद्भुत अनुग्रह, जिसकी वजह से मेरा जो भय है वो मुझसे पूरी तरीके से दूर हो गया है। And then we also got the true fear of God. और फिर हम सीखते हैं परमेश्वर की जो सच्चा जो भय है हम जो होना चाहिए।
that we should not sin and to please God, and to run away from sin. तो उसका अर्थ है कि हमें पाप नहीं करना है, पाप से भाग जाना है और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। So that is the true grace of God. तो यही सच्चा अनुग्रह है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। That we should really fear God and turn away from sin, and then we should have to remove all the other unnecessary fears from our life about what will happen in the future. तो सच में हमें सारे पाप से दूर होकर परमेश्वर का भय लेना है और जितनी भी चिंता है कि हमारे भविष्य में जो होने वाली है उस सारी बातों को हमारे जीवन से हमें दूर रखना है। So after these first 4 initial verses, ये 4 वचन बाद में then he comes to the main point. फिर वो एकदम मुख्य बात पर आते हैं। He said, "For this reason I left you in Crete, that you might set in order what remains, and appoint elders in every city as I directed you." 5 वचन में, इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। Now you know Crete. I hope all of you know where Crete is. तो मैं ऐसे कल्पना करता हूँ कि आपको सबको पता होगा क्रेते कहाँ पे है। Crete is an island near the country of Turkey or Asia Minor. एशिया माइनर या टर्की के जो जुड़ा हुआ एक टापू है क्रेते। So there are other islands known as I hope you know what island is, a place that is surrounded by water. Other islands like Cyprus, they are Malta. So this island was called Crete, and it was in the middle of the Mediterranean Sea. तो हम देखते हैं ये जो टापू है उसका अर्थ आपको पता होगा कि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, जैसे कि साइप्रस का जो टापू है, ये जो टापू है क्रेते का, वो मेडिटेरियन सी के वहां पर था, उससे लगभग। So when you get opportunity, sometimes the Bible there are maps behind, so you can always see where the island of Crete lies. तो जब भी आपको मौका मिलता है, अगर बाइबल के पीछे एक मैप दिया जाता है, आपको अवसर मिलेगा तो आप उसे देख लीजिए कि ये क्रेते का जो टापू है वो कहाँ पे आता है। And he said the gospel had come to the island of Crete. The apostle Paul and many others had brought, and there were many believers there who got converted and came to Christ. तो हम देखते हैं जहाँ पर सुसमाचार जो फैलता है प्रेरित पौलुस के द्वारा क्रेते के, वहाँ पे बहुत सारे जो विश्वासी रहते हैं, जो वचनों के द्वारा जिनका परिवर्तन होता है। So the apostle Paul could not stay there, so he sent the apostle Titus to be the shepherd or the pastor to all the people there. तो हम देखते हैं वहाँ पर पौलुस ज्यादा दिन नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने तीतुस को बोला कि वहाँ पर आप पासबान बन के रहिए ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनका ख्याल आप रख पाए, so that they can be a proper order, ताकि वो सही दिशा की ओर चले, and that he can appoint elders in every city. ताकि वो सारे जो नगर हैं वहाँ पर प्राचीनों को भी नियुक्त कर दे, so that those who are mature can also guide and lead the brothers and sisters in Crete. ताकि जो प्रभु में सिद्ध हैं वो भी जो परमेश्वर के जो संतान है उनको जो अगुवाई कर सके और उनकी मार्गनिर्देशन कर सके। So then he said that he had to appoint the elders elders are people who are mature and who will guide the church. और फिर वो कहते हैं कि वो प्राचीनों को नियुक्त कर सकते हैं जो कि बड़े सिद्ध हैं परमेश्वर में और वो कलीसिया की अगुवाई कर सकते हैं। So he said these are the qualifications, verse 6. और 6 अध्याय वाक्य में लिखा है ये सारी जो उनकी योग्यता होनी चाहिए। A man should be above any fault. जो व्यक्ति है वो निर्दोष होनी चाहिए। Outsiders, the people of the church should not find fault or any sin in his life. तो जो कलीसिया के बाहर के लोग हैं वो कभी भी इनके जीवन में कोई भी पाप या कोई भी बुरी बात देखने नहीं चाहिए। There's no obvious sin that he is living in sin like the unbelievers. तो वहाँ उनके अंदर कोई भी ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जैसे कि वो अविश्वासी की तरह रहते हो। And second is he should be the husband of one wife only. और दूसरी बात ये है कि उनको एक ही पत्नी का पति होना है। Because in those days there a lot of people had many wives and such people cannot be elders. क्योंकि उस दिनों में लोगों की बहुत सारी पत्नियां होती थी और ऐसे लोगों को प्राचीन नियुक्त नहीं कर सकते थे। And it says if they have children they should believe in Jesus Christ. और फिर उन्होंने कहा कि उनके जो लड़के हैं वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले होने चाहिए।
And they should not be accused of dissipation or rebellion. The children should not be rebellious people or living loose lives. और उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो बच्चे हैं वो लुचपन या निरंकुशता के दोष नहीं होनी चाहिए उनके अंदर. Then he said again, the overseer. Overseer also means elder. Verse 7. और 7वां वचन फिर वो अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं. It again should be above reproach, means they should not have any obvious fault. तो वो जो अध्यक्ष है वो भी एकदम निर्दोष होने चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है. And they should be God's stewards. और वो जो है परमेश्वर के भंडारी होने चाहिए. God has given us so much responsibility. Now we have to give the responsibility and carry out our responsibilities towards our brothers and sisters. तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारी जिम्मेदारी दी हुई है और हमें ये जिम्मेदारियों को पूरी करना है, जो भी परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपे हैं, जो हमारे भाई बहनों के लिए हमें करना होता है. God has given you and me different responsibilities, like different gifts and talents. So we must use it faithfully. तो परमेश्वर ने हमें आपको बहुत सारी जिम्मेदारी दी है, बहुत सारे वरदान दिए हुए हैं, तो हमें उसे बहुत ही विश्वास से, योग्यता से उनका इस्तेमाल करना चाहिए. Because one day God will ask us an account of what we did with our lives. क्योंकि एक दिन परमेश्वर इन चीजों का लेखा लेने वाले हैं कि हमने अपने जीवन के साथ क्या किया है. What we did with all the abilities that God has given us. परमेश्वर ने जो भी काबिलियत हमें दिया है उसके साथ हमने क्या किया है. Whether we are elders or non-elders. क्या हम प्राचीन है, क्या प्राचीन नहीं है, तो भी we have got a gift of sharing the word. हमारे पास एक वरदान होता है परमेश्वर के वचनों को बांटने का. Encouraging others in singing. दूसरे लोगों को प्रोत्साहन देने का गीतों के द्वारा. We can encourage the people, brothers and sisters by word and prayer. तो हम भाई बहनों को प्रोत्साहन दे सकते हैं वचनों के द्वारा, प्रार्थना को द्वारा. And we can help one another also in many practical ways. और एक दूसरे का हम मदद भी कर सकते हैं बहुत सारे वास्तविक चीजों में. And we can help to spread the gospel by preaching, teaching, and telling others about the good news. तो हम जो है समाचार फैला सकते हैं, उपदेश देकर, वचन बांटकर या दूसरों को इस शुभ संदेश को सुनाकर. So whatever God has given us, some responsibility, some ability, we must use it faithfully. तो परमेश्वर ने जो भी जिम्मेदारी दी है, हमें कोई भी वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे हमें विश्वास से, योग्यता से उसका इस्तेमाल करना है. And verse 7 says they should not be, the pastors, the elders should not be self-willed. और यहाँ पे लिखा हुआ है जो अध्यक्ष है वो स्वार्थी नहीं होनी चाहिए. Yeah, we don't be selfish type of people. They want to get things for themselves. तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो स्वार्थी चीजों से अपने लिए सिर्फ सोचते रहते हैं. Only think about themselves and their families. Sorry brother, can you repeat? They should not be people who think only about their good and their family's good. तो ये ऐसे लोग होने नहीं चाहिए जो सिर्फ अपनी भलाई और अपने परिवार की भलाई के लिए ही सोचते हो. And not quick-tempered. और जल्दी से क्रोध करने वाले नहीं होने चाहिए. They should be able to control their temper very quickly and not be given to loud tempers and shouting and fighting. तो उनको अपने क्रोध को अधीन में रखना आना चाहिए. वो जल्दी से झगड़ा करना या चिल्लाने वाले नहीं होने चाहिए. And it says not addicted to wine. और फिर लिखा हुआ है ना पियक्कड़. That means in those areas, Crete, there were wine was a common drink, like as we that is sweet wine, just like we drink tea over here. तो हम देखते हैं क्रेते जो जगह है वहां पर जो शराब मिलता था वो बहुत ही साधारण तरीके से, जैसे हम चाय पीते हैं यहाँ पर, वैसे वहां पे वो शराब पीते हैं. But some people used to drink lot of it, then they would get drunk. तो कुछ लोग जो है ये बहुत ज्यादा पी जाते थे, इसलिए वो पियक्कड़ हो जाते थे. And then the Apostle Paul said these people should not drink much wine. They should control their drinking of their wine. तो प्रेरित पौलुस उनको कहते हैं कि ये जो लोग हैं ज्यादा पीने नहीं चाहिए, उनको उनका जो पीना है उस पर बहुत नियंत्रण रखना होगा. Then it says not pugnacious. और फिर बोलते हैं कि ना मारपीट करने वाला. Pugnacious means people who keep on getting violent and losing, getting into quarrels. तो उसका अर्थ ये है कि वो हमेशा गुस्से में आएगा और फिर बाद में मारपीट करने, झगड़ा करने लग जाता है.
हिंदी जैसे झगड़ालू, तो झगड़ालू नहीं होना चाहिए. And not fond of sordid gain. और ना नीच कमाई का लोभी होना चाहिए. So they should not run after money and from people and wanting money from this one that one. So such people, those who are interested in money, should not be an elder. तो वो लोग जो है पैसे के पीछे भागने वाले नहीं चाहिए, इसके वहां से पैसे लेने वाले नहीं होना चाहिए. ऐसे जो लोग हैं वो अध्यक्ष या प्राचीन नहीं बन सकते. And then he said, but they should be, verse 8 should be hospitable. और फिर 8 वचन में लिखा है, पर कहुनाई करने वाला. Hospitable means we must willing to help other people to come to our homes and help them in many ways, all our brothers and sisters. तो उसका अर्थ ये है कि हम सारे जो हमारे भाई बहन हैं उनको हर तरीके से हम मदद करने वाले होने चाहिए. We have an interest to help others. तो हमारे अंदर एक दिलचस्पी होनी चाहिए दूसरों को मदद करने का. All those who are in need, we must learn to help. तो जो कोई भी जरूरत में है उनको हमें मदद करना है. They said loving what is good. और फिर लिखा हुआ है भलाई को चाहने वाला. Yes, and then it should be sensible. और फिर संयमी. Insensible means we should not be talking foolish things. तो उसका अर्थ ये है कि उनको मूर्खता की बातें नहीं करनी है. And just. और फिर न्यायी. Means always be fair to everybody. तो उसको सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रखना है. And then devout. और पवित्र. Devout means have a desire for God and a longing for God. परमेश्वर के लिए एक धुन होना, परमेश्वर के लिए हमेशा एक चाहत होना. Longing to pray, longing to read the Bible, longing to come for the meeting. हमेशा एक चाहत होना परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और कलीसिया संगति में आना. And then self control. और फिर जितेंद्रिय. Self control in food, self control in sleep, and self control in talking. So all that they should have a self control in their life. तो उनके अंदर एक नियंत्रण होना चाहिए. उनका खाना पीना, सोना या पैसों का खर्च करना, हर चीजों में एक नियंत्रण उनके जीवन में होना चाहिए. And verse 9 says, holding fast the faithful word which is according to the teaching, that he may be able to exhort with sound doctrine and to refute those who contradict. और 9 वचन में लिखा है, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके. The purpose of all we get through the Bible studies and read the Word of God is that we may know the Word of God very well, so that we may be able to know the truth and we may be able to correct other people who do not know the truth. तो ये जो सारा जो वचन हमें मिलता है, जो भी बाइबल स्टडी जो हमें मिलता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सच्चाई की बातों को समझ पाए, वचनों को अच्छी तरीके से समझ पाए और जो गलत कह रहे हैं उनको हम सुधार पाए और उनको सीधा कर पाए इन वचनों के द्वारा. And to show people what is the correct way to do according to the word of God. और लोगों को ये दिखाना है कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा कैसे सही तरीके से एक जीवन जीना है. What the word of God says about eating and drinking. परमेश्वर का वचन क्या कहता है खाने के विषय में, पीने के विषय में. What the word of God says about money. परमेश्वर का वचन पैसों के विषय में क्या कहता है. What the word of God says about marriage. विवाह के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. What the word of God says about our home relationship. हमारे परिवार में जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. What of God says about how to conduct the meetings in the church. और कलीसिया में कैसे हर एक संगति का प्रबंधन करना है, इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है. So even the elders should know how to conduct, and he should have faith in the word of God and should know the word of God properly. तो हर एक जो प्राचीन है उनको कैसे सब सारी चीजों को करना है, उसे आने के लिए परमेश्वर का वचन जो है उनको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए. Because many false teachings come into the church to a lot of people, so you should be able to correct them and set things right. क्योंकि बहुत सारे जो झूठे उपदेश है जो कलीसिया में आ सकते हैं, इसलिए ताकि जब आपको पता होगा तो अब उनको आप सुधार सकते हो, उन्हें सही कर सकते हो. So even in the apostles Paul's time, there were so many false teachers, and so they would not go by the word of God, but they go to many other ideas which they had, all wrong ideas.
तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के भी समय पर बहुत सारे झूठे शिक्षक थे, इसीलिए जो है सही मार्गों में वो नहीं चलते थे। जो झूठी शिक्षा उन्हें मिलती थी उसके द्वारा ही वो उस मार्गों में वो चलते थे। The apostle Titus was a faithful brother, and he had the responsibility of appointing elders in the church. तो तीतुस जो थे बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति थे, तो उनके पास एक जिम्मेदारी था कि वो प्राचीनों को कलीसियाओं में नियुक्त करें। So among these new believers, he wanted them to, the people who are faithful and who are good in heart, that they should also be able to lead and guide other people. तो वो चाहते थे कि जो हृदय में भले हैं और जो विश्वास योग्य अच्छे जीवन जीते हैं, वो भी जो लोगों को जो कलीसिया में है उनकी अगुवाई करे, उनका मार्गनिर्देशन करे। Verse 10 says, "For there are many rebellious men, empty talkers and deceivers, especially about the circumcision, who must be silenced." Verse 11, because they are upsetting whole families, teaching things that they should not teach for the sake of sordid gain. उसका 10 और 11 वचन, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। Whenever God's work is done, the devil also starts working. जहाँ पे परमेश्वर के काम पूरे होते रहते हैं, वहाँ पे शैतान भी अपना काम करना शुरू कर देता है। People in the church to create confusion and all sorts of trouble. तो ऐसे लोग जो है कलीसिया के अंदर बहुत ही गड़बड़ी कर देते हैं और बहुत ही समस्या ला देते हैं। Not some, but says there are many rebellious people. तो कुछ नहीं है, बहुत सारे विवादी लोग हैं ऐसे। They don't want to listen at all. They just want to do their own thing. तो वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते, वो जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं वो। And the empty talkers, they talk a lot about foolish things. तो वो बकवादी बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही मूर्खता की बातें और खाली बातें कहते रहते हैं। And the deceivers, they keep on telling the things that are not true. और वो जो धोखा देने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें कहते हैं जो कि सच नहीं होती हैं। And especially, sir, about certain Jews were there, they were insisted on doing circumcision. और यहाँ पे लिखा हुआ है, विशेष करके जो यहूदी है वो खतना करने में बहुत ही वो दबाव देते थे। And the apostle Paul said in verse 11, they should be told to keep quiet. तो प्रेरित पौलुस जो है 11 वचन में कहते हैं कि इनका मुंह बंद करना चाहिए। They should not be allowed to go from house to house and keep on teaching wrong things. तो उनको घर के घर जाकर गलत शिक्षा देने के लिए उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए। Because they're going house to house, they are bringing trouble in many families. क्योंकि अगर वो घर के घर जाते रहेंगे, बहुत सारे परिवारों में बहुत सारे परेशानियां लाएंगे वो। Because they are teaching and because they want a lot of money for themselves. क्योंकि वो अपने लिए बहुत सारे पैसे चाहते हैं, इसीलिए। And their motives are not right. और उनके जो मकसद है, उद्देश्य है, वो सही नहीं है। They want power and position and money for themselves. उनको अधिकार चाहिए और स्थान मान चाहिए, पैसा चाहिए अपने लिए। The apostle Paul was telling the Titus, just beware of those people and tell them to keep quiet and to not teach all these things. तो प्रेरित पौलुस तीतुस को यहाँ कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और उनका मुंह बंद कर दे। Verse 12 says, one of themselves, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts and lazy gluttons. 12 वचन में उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। And verse 13 says, this testimony is true. For this cause reprove them severely, that they may be sound in the faith. और 13 वचन, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चितौनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। So in Crete, see the lifestyle of the people in Crete, they were very lazy type of people. तो हम देखते हैं क्रेते के जो लोग हैं बहुत ही आलसी तरह के लोग थे। Both believers and unbelievers. विश्वासी और अविश्वासी दोनों ही। And they were lazy and they were very greedy. They want to eat a lot of food. और वो बहुत ही आलसू थे और बहुत ज्यादा खाना चाहते थे वो। And they used to tell a lot of lies. और वो बहुत ही झूठ भी बोलते थे। And they became also very evil-hearted. और वो बहुत ही दुष्ट हृदय वाले थे। That was the nature of the people who lived in Crete. तो ऐसे ही स्वभाव के लोग थे जो क्रेते में रहते थे। So once they became Christians, this nature still was there in their lives. A lot of this nature was there. तो हम देखते हैं मसीही होने के बाद भी ये जो स्वभाव था, जो बहुत सारे स्वभाव उनके अंदर फिर भी हुआ करता था। Even though the Lord has forgiven their past sins, the nature had not changed much. पर परमेश्वर ने उनके जितने भी पाप है उसे क्षमा कर दिया, तो भी उनका जो स्वभाव है वो बदला नहीं था।
That is why the Lord tells us, the Apostle Paul always says, we must repent and we must have faith every day. तो इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम्हें प्रतिदिन पश्चाताप करना है और तुम्हें पापों से मुक्त होना है प्रतिदिन. And this was one of the prophets who said this, that Cretans are like this type of people. तो एक भविष्यवक्ता जो है ये ऐसे कहते हैं कि जो क्रेते के लोग हैं ऐसे स्वभाव के हैं. You know, sometimes we had a place in Goa, in India, where the people are, according to the Portuguese culture, they just like to, they call siesta and fiesta. They like to sleep and like to eat a lot. तो हम देखते हैं गोवा में जो स्वभाव है उनका, ऐसे लोग हैं जो खाना चाहते हैं और पीना चाहते हैं, ऐसे ही जीवन को वो बिताना चाहते हैं. They like to sleep a lot, very lazy. और बहुत ही सोने के बहुत ही सोने को बहुत ही चाहते हैं, ऐसे आलसी लोग हैं वो. And they like to eat a lot of good food. और वो बहुत ही अच्छा खाना खाना चाहते हैं. That is the aim in life. तो उनका जीवन का उद्देश्य वही है. The Apostle Paul says, once you become a child of God, a believer, you have to change these ways of living. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं, एक बार आप जब प्रभु के बच्चे बन जाते हो, विश्वासी बन जाते हो, तुमको ये तुम्हारा ये जो चाल चलन जीवन शैली है तुम्हें बदलना है. And verse 13 says, for this cause he said, reprove them severely that they may be sound in the faith. और फिर 13 वचन में पौलुस कहते हैं कि यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि विश्वास में पक्के हो जाए. So sometimes we have to, the shepherd should tell very strictly and very firmly that these things should not be done like this. तो कभी कभार ऐसा होता है कि चरवाहे को कुछ लोगों को बहुत ही सख्ती से चेतावनी देना होता है कि ऐसे ये चीजों को ऐसे नहीं करना है. Stop talking such a lot. ऐसे बातें बहुत करना बंद कर दीजिए. Don't be lazy. Get up in the morning. Do your work properly. आलसी मत बनो. सुबह उठकर अपने सारे जो काम काज है उसे सही तरीके से करें. And don't run after money. पैसों के पीछे ना भागे. And then so that we can be disciplined people. ताकि हम जो है अनुशासन में रहने वाले बच्चे बन जाएं. And don't unnecessarily keep on talking. और बिना मतलब की बातें करते ना रहें. So and then so that then their faith will be sound. और फिर उनका जो विश्वास है वो पक्का हो जाएगा. Then we can be strong in the faith and we'll have a living faith in God and can progress in our Christian life. फिर हमें जो है परमेश्वर पर जो है जीविता विश्वास होगा और अपने मसीही जीवन में हम बढ़ोतरी पा सकते हैं. Verse 14 says, not paying attention to Jewish myths and commandments of men who turn away from the truth. और फिर 14 वचन, और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं. See, now many believers once they don't like the commandments of the Lord, then they start all sorts of stories and say, okay, you observe this, do this function, that function, this feast, that feast, do the Sabbath, do this feast, and all these Passover and many other ceremonies they start doing. तो जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पसंद करते थे वो लोग कहने लगे कि तुम्हें ये पर्व, वो पर्व, ये दिन, शब्द का दिन, ये सारे जो रीति रिवाज है वो करना चाहिए, ऐसे कहने लगते हैं. Because they are turning away from the truth. The truth is very simple. क्योंकि वो सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, परंतु सच्चाई जो है बहुत ही सरल है. That is why the Roman Catholics have made so many ceremonies, and even many other denominations make so many ceremonies to please God. तो इसलिए हम देखते हैं रोमन कैथलिक्स ने भी बहुत सारे रीति रिवाजों को बना के रखा है और बहुत सारे जो कलीसिया है, जो संस्था है, उन्होंने भी रीति रिवाज बनाए रखे हैं ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे. With Jesus, there is no ceremonies at all. It's just a simple faith in Jesus Christ. तो यीशु मसीह के लिए कोई भी रीति रिवाज नहीं है. हमें सिर्फ साधारण विश्वास, सरल विश्वास यीशु मसीह पर सिर्फ होना चाहिए. We can fast, but there's no rule for fasting. हम जो उपवास कर सकते हैं, परंतु कोई नियम नहीं है उपवास का. We can give money for the Lord's work, but there's no rule. हम परमेश्वर के कामों के लिए पैसे दे सकते हैं, परंतु वहाँ पे कोई नियम नहीं है. We should pray, but there are no rules for praying. How much we should pray and how we should pray. तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई नियम नहीं होता है कि हमें कितना प्रार्थना चाहिए, करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. We should pray led by the Holy Spirit. तो हमारा जो प्रार्थना है पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया हुआ होना चाहिए. It's a very simple devotion to Christ. तो ये एक सरल भक्ति है यीशु मसीह की ओर. That we should be freed from sin. ताकि हम जो पाप है उसे स्वतंत्र हो सके. And we should not run after all these different set of stories which people tell about their experience.
ताकि हम ये जो अलग तरीके की जो कहानी कथा है जो लोग कहते हैं उनके पीछे उनके जो अनुभव है उनके पीछे ना भागे। So the Apostle Paul told Titus that you must set these things in order in your church. तो प्रेरित पौलुस तीतुस को कहते हैं तुम्हारी कलीसिया में इन सारी बातों को सही कर दो तुम। Verse 15 says, to the pure, all things are pure. तो 15 वचन में लिखा है शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled. पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। So when we follow God with a pure heart, then we see other people and we pray for them, have a sincere heart. We'll not keep on criticizing and finding fault. जब हम एक शुद्ध हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं और जब लोगों को देखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम दूसरे लोगों की जो गलतियां हैं वो निकालते नहीं बैठेंगे। But the people who sin, they get defiled and then their minds have become very bad and they are suspicious of everybody. तो हम देखते हैं जो अशुद्ध रहते हैं, पाप करते हैं, उनका मन भी अशुद्ध हो जाता है, वो दूसरे लोगों के बारे में बहुत ही संदेह करने लगते हैं। They keep on grumbling and murmuring. वो कुड़कुड़ाई करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। They are unhappy with so many things. वो बहुत सारी चीजों से नाखुश रहते हैं And their mind and their conscience are defiled. और उनकी बुद्धि और विवेक जो है दोनों अशुद्ध हो जाती हैं। They don't have a clear conscience. तो उनके पास एक शुद्ध विवेक नहीं होता है। So the Lord says that we should always have a pure heart. तो परमेश्वर कहते हैं कि हमारे पास हमेशा एक शुद्ध हृदय होना चाहिए। Then we will always see things with a good heart for everybody. तो फिर हम हमारे इस शुद्ध हृदय से सभी के लिए अच्छी चीजों को देख पाएंगे। Then verse 16 says, they profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good thing. और 16 वचन वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। So that is a problem with many believers. After they come to the Lord, they live a very disobedient life. तो ये समस्या बहुत सारे विश्वासियों के साथ है कि वो मसीही जीवन में आने के बाद बहुत ही आज्ञा ना मानने वाला जीवन वो जीते हैं। They don't want to leave their worldly pleasures and worldly desires. तो वो अपने सांसारिक अभिलाषा और सांसारिक जो आनंद है उसे छोड़ना नहीं चाहते। And because of that, they fall into so many sins. उसी वजह से बहुत सारे पापों में भी वो गिर जाते हैं। They run after money and think about money all the time. वो पैसों के पीछे भागते हैं और पैसे के विषय में हमेशा सोचते रहते हैं। They're disobedient to their parents, disobedient to the elders. वो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, जो प्राचीन है उनकी आज्ञा नहीं मानते। And they just don't do any good thing at all in their life. उनके जीवन में कुछ भी भलाई का काम वो करते ही नहीं हैं। So Jesus said you cannot serve two masters. यीशु मसीह ने कहा आप दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। So when we come to the Lord and we don't follow Him in our practical life, then we become like a worthless person. जब हम प्रभु यीशु में आते हैं और वास्तविक जीवन में हम उसका आज्ञा नहीं मानते हैं तो एक योग्य व्यक्ति हम नहीं बन पाते। Like the church in Laodicea, they thought they were very fine people because they were so rich and they were so talented, and they said there's nothing wrong with them. But God said, "You are so bad that I have to spit you out of my mouth." तो हम देखते हैं लवोदिकीया कलीसिया के बारे में वो सोचते थे कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही संपन्न है, ऐसे वो सोचकर एक जीवन जी रहे थे। परंतु यीशु मसीह परमेश्वर उनको कहते हैं कि तुम इतने बुरे हो कि मैं मेरे मुंह से तुम्हें थूक कर बाहर निकालने वाला हूँ। There are so many Christians who are born again, but they are backslidden in their life. बहुत सारे जो लोग हैं जो नया जन्म पाया है परंतु उन्होंने विश्वास में वो पीछे हट गए हैं। They are only thinking about earthly things. वो सिर्फ संसार के विषय में ही सोचते हैं। They are busy doing the ministry of God, but their inner life is very bad. तो वो बहुत ही व्यस्त रहते हैं परमेश्वर की सेवकाई करने में परंतु उनका जो अंदरूनी जीवन है बहुत ही बुरा होता है। Full of pride, they have no humility in their life. तो बहुत ही घमंड से भरे हुए रहते हैं, बिल्कुल भी नम्रता नहीं होती है उनके जीवन में। So that's why they're always grumbling and murmuring and finding fault instead of thanking and praising God.
इसलिए हमेशा वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, इसके बजाय कि वो परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद देते रहें। And instead of doing God's will, they are doing their own will. परमेश्वर की इच्छा को करने के बजाय वो खुद की इच्छा को करते बैठते हैं। Because of that, they have become accursed. Their behavior is not at all good, not a godly behavior. तो उसकी वजह से उनका जो बर्ताव है वो अच्छा नहीं रहता है, एक धार्मिक बर्ताव नहीं रहता है उनका। So this has happened just about 20 or 30 years after the Apostle Paul has started preaching the gospel. तो ये होता है 20 या 30 साल बाद में जब प्रेरित पौलुस जो है सुसमाचार सुनाने लगते हैं। So many bad things can happen in the church. बहुत सारी बुरी चीजें कलीसिया के अंदर हो सकती हैं। So many good people can become bad. बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो भी बुरे हो सकते हैं। So the Apostle Paul was telling Titus, just be on the alert that these people will not spoil the other good people. तो इसीलिए प्रेरित पौलुस तीतुस को कहते हैं कि बहुत ही सावधान रहे ताकि जो ये लोग हैं, बुरे लोग जो है अच्छे लोगों को भी खराब ना कर दे। So that others should not be hindered from following the Lord because of the bad example of many other believers. वो कहते हैं कि जो ये लोग का जो उदाहरण देखकर जो अच्छे लोग हैं वो भी उनके जो जीवन जो जी रहे हैं उसको वो खराब ना कर ले इन लोगों के जीवन को देखकर। I remember what A.W. Tozer said. मैं याद करता हूँ अभी A.W. टोजर ने कहा था एक बात। He said when a new person comes to the Lord, उन्होंने कहा कि जब एक नया व्यक्ति प्रभु में आता है, he's got such a love and desire for God. उसके अंदर बहुत ही प्रेम रहता है और एक अभिलाषा रहता है परमेश्वर के लिए। There's such a devotion for the Lord. परमेश्वर के लिए बहुत ही अच्छी भक्ति रहती है। And till he comes to the church, सिर्फ जब तक वो कलीसिया में आता है तब तक। Because in the church there are all sorts of characters of types of people in the church. क्योंकि कलीसिया के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे चरित्र के लोग कलीसिया में रहते हैं। So many half-hearted people are there, so many backsliders. बहुत सारे जो आधे मन के लोग हैं, बहुत सारे पीछे हटे हुए लोग हैं। And then he wonders how these people are behaving like this. तो वो ये सोचने लगता है कि ये लोग ऐसे बर्ताव कैसे कर रहे हैं। Then also there are a lot of people who have lots of teachings everywhere, different types of teaching, which try to confuse him. और फिर हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे उपदेश जो लोग सिखाने लगते हैं वो सुनकर भी वो बहुत ही गड़बड़ा जाते हैं। The gospel is so simple: repentance and faith. जो सुसमाचार है बहुत ही सरल है, पश्चाताप करना और विश्वास करना। Repentance every day, obeying God, and just keep on having faith in God that God is going to help you. तो हमेशा एक पश्चाताप होना और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर पर विश्वास करना कि परमेश्वर आपकी सहायता हमेशा करते रहेंगे। There are so many false teachers in the church who brings up so many other doctrines, saying this is the method, that there are demons inside you, and this and that, and so many generational curses, and all the other so many prophecies, and so much confusion they can bring into the lives of new believers. तो हम देखते हैं बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं जो बहुत सारे नए सिद्धांतों को लाते हैं, जैसे कि बहुत सारे भूत हैं आपके जीवन में या ये सारी चीजें हैं, चिन्ह चमत्कार, इन सारी बातों को बोलकर लोगों जो नए विश्वासी हैं उनको वो बहुत ही गड़बड़ी में डाल देते हैं। So the Apostle Paul was telling Titus, be careful of all these people, see that all the new believers are protected from all these type of characters. तो प्रेरित पौलुस तीतुस को कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहे ताकि जो नए विश्वासी आ रहे हैं ऐसे लोगों से बहुत ही सुरक्षित रह जाए। So that is why the Apostle Paul, when he started initially, he started warning them about all these bad people. तो हम देखते हैं जैसे ही प्रेरित पौलुस यहाँ पे शुरुआत करते हैं तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे चेतावनी देते हैं जो बुरे लोग हैं उनके विषय में। He said, once they were good, but now they have become disobedient and they have gone into, they are being deceived. तो पहले वो बहुत ही अच्छे थे, परंतु बाद में आज्ञा नहीं मानने की वजह से बाद में वो जो धोखे में आ गए हैं। So we learn from this that we also have to be on the lookout, be careful about the type of people that we are mixing up with. तो हमें भी यही है कि ऐसे जो लोग हैं उनमें से बहुत ही हमें सावधान रहना, लोगों के साथ मेलजोल करने में हमें बहुत ही सावधान रहना।
Otherwise, we will also become like them and stray away from the faith. नहीं तो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे और विश्वास से बहुत ही दूर हो जाएंगे. So the purpose of rebuking them is that they may change and they come back and repent and come back to the Lord. तो उनको ताड़ना देने का, उनको डांटने का अर्थ ये है कि वो जो है पश्चाताप करे, मन फिराए और परमेश्वर की ओर मुड़ कर आए. See, when Jesus, the Apostle Peter told Jesus not to go to the cross, तो प्रेरित पतरस जो है यीशु मसीह को कहते हैं कि क्रूस पर मत जाओ. Jesus turned down. He was the closest apostle to Jesus. Jesus turned to Peter and said, "Go behind me, Satan." तो हम देखते हैं यीशु मसीह का जो बहुत ही करीबी जो चेला था वो पतरस था. उसको मुड़कर यीशु मसीह उसे कहते हैं कि शैतान मुझे छोड़कर चला जा. You're a stumbling block to me. तो मेरे लिए एक ठोकर का कारण है. So that is why whenever anybody is not walking on the truth and the light of the truth, people also say, "This is not the way. This is not the way God has called us to walk." You must, and if you're an elder, you should be able to rebuke that person. तो अगर कोई हमें पता चलता है कि वो सच्चाई के मार्ग में नहीं चल रहा है, सत्य में नहीं चल रहा है, तो आप एक प्राचीन हो तो आप उनको डांट कर ये कह सकते हैं कि सही मार्ग नहीं है जिस पे आप चल रहे हो. So that he can repent and turn to the right way. ताकि वो पश्चाताप करे और सही मार्ग की ओर मुड़कर आ जाए. The good thing about Peter, he listened to Jesus and he turned to the right way. तो पतरस के बारे में एक अच्छी बात ये थी कि उसने यीशु मसीह की बात सुनी और पश्चाताप कर मुड़कर आया वो. But we see about Judas, he never listened and he went and betrayed the Lord. तो हम यहूदा के बारे में जानते हैं कि उसने कभी सुना नहीं, यीशु मसीह को धोखा दे दिया उसने और वो दूर चला गया. That's why we see in the word of God there's a lot of encouragement and a lot of warning. इसलिए हम नए करार में देखते हैं बहुत सारे जो चेतावनी भी है, बहुत सारे प्रोत्साहित वचन भी है. So this is about chapter 1. I hope you all read it carefully today and tomorrow. तो ये पहले अध्याय में ये सब कुछ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बहुत ही ऐसे ये अध्याय ले. Tomorrow we will do the study on chapter 2. तो कल हम जो पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में how godly Christians should behave. एक जो धार्मिक व्यक्ति है उसे कैसे बर्ताव करना चाहिए. This is a very important chapter. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है. May the Lord bless the word to all of us. तो परमेश्वर हम सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा. Amen. Let us pray. प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमको तारना देते हैं प्रभु जी, ताकि हम भटके नहीं प्रभु जी, आपके सेवा में रहे, आपके प्रेम में रहे हमेशा लॉर्ड. पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी, जब कि हम सच्चाई में हमेशा चले और सच्चाई में पवित्र आत्मा के बल पे हम चले. थैंक यू लॉर्ड. हमको बचा प्रभु जी, व्यक्तिगत जीवन को, हमारा फैमिलीज को सलीसा को बचाइए प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड. हम हमारे साथ है, हमको मार्गदर्शन दे. जो गलती हम किया है हमको पश्चाताप करने के लिए हमको कृपा दे दीजिए लॉर्ड, और आपका आशीष दे लॉर्ड प्रभु. थैंक यू लॉर्ड. सभी को आशीष दे प्रभु. हालेलुया लॉर्ड. हम यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन.